स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि की कक्षा। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट किया था एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 1.4। लेकिन उससे पहले इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। डन? ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.4। अगर आप लोग को याद हो तो ये चैप्टर का जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था तभी मैंने बताया था कि प्रैक्टिस सेट 1.4 कंटेन्स ओनली 4 क्वेश्चंस। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। दिस एक्सरसाइज कंटेन्स ओनली 4 क्वेश्चंस। सो वो हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब लुक एट द वेरी फर्स्ट सम। इट सेज दैट 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15 is your very first equation. The second equation is 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. Okay, अब ये सम स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ बेसिक बताना है। अगर हम 5x लिखते हैं तो ये 5x का मतलब क्या है? 5 into x, am I correct? 5x is 5 into x. x मतलब क्या? 1x ना। जब हम 5x लिखते हैं सो इट इज 5 into 1x. am I correct? सो उसी तरीके से अगर हम 5 upon x लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 5 into 1 upon x. Am I correct? जब यहाँ पे 5x का मतलब 5 into 1x है तो 5 upon x will be 5 into 1 upon x. Okay, I hope this basic is clear to you all because this is the only thing which is different in practice at 1.4 than the other previous exercises. Okay, so I hope you all are clear with this. अब ये अगर आप लोग को समझा है so this exercise will be very easy for you all. Okay. Now see here. The very first equation is 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15. Correct? मतलब what is this? 2 into 1 upon x minus 3 into 1 upon y is equals to 15. Am I correct? यही दिया है ना क्वेश्चन में. I have just splitted the equations a bit. अभी क्या करेंगे? उसी तरीके से ये इक्वेशन को भी लिखना है. नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है? 8 upon x प्लस 5 upon y इज इक्वल्स टू 77. तो इसे कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 1 upon x प्लस 5 इंटू 1 upon y इज इक्वल्स टू 77. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू योर. अब ये दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे ना? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन 1 upon x को हम a कंसिडर करेंगे. आई रिपीट, 1 upon x को हम a कंसिडर करेंगे एंड 1 upon y को b कंसिडर करेंगे. ओके, तो भी यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में 1 upon x a है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2a. एम आई करेक्ट? 1 upon x इज इक्वल्स टू a ना. So this will be 2 into a minus 3 and this 1 upon y is b. So 3b is equals to 15. Okay. So now you can see that I have just simplified the equation so that it will be easy for us to solve. So mark this as equation number 1. Okay. Now similarly here, what will be this? 8a plus 5b is equals to 77. Understood students? Okay, very good. अब यहाँ से I have simplified the equations for you all. Now you have to solve this equation first of all. ये solve करना बहुत easy है because this is based on a very first exercise. That is how do we solve two linear equations simultaneously. हम equation 1 को 4 से multiply कर देते हैं. So multiply 1 by 4. Okay, so what will be this? 4 into 2 will be 8a minus 4 3s are 12b is equals to, this will be 20 and 60. Okay, equation number 3. Now see, in equation number 2 and 3, the coefficient of a is same, that is 8, and their sign is also same, that is plus. So what do we do when the signs are same? We subtract the equations, correct? So now I write subtracting
subtracting 2 and 3. So write the very first means this equation. 8a plus 5b is equals to 77. 8a plus 5b is equals to 77. And the next equation is 8a minus 12b. 8a minus 12b is equals to 60. Okay. Now whenever we subtract, we change the sign of the second equation. ये सब मैंने सिखाया in the very first exercise. Now this I'll cancel. Now 12 plus 5, 10 plus 5, 15. So it is 17b. And यहाँ पे भी कितना बचेगा? 17. So b will be what? 1 आएगा ना? Therefore b is equals to 1. ये यहाँ पे divide हो जाएगा c. b is equals to 17 upon 17. 17 1 जा, 17 1 जा. Therefore b is equals to 1. ठीक है, समझा इतना? अभी b का वैल्यू मिल गया, अभी हम a का वैल्यू ढूंढेंगे. So I'll substitute b is equals to 1 in 1. Okay, so what is the first equation? 2a minus 3 and b is 1 is equals to 15. So 2a minus 3 is equals to 15. 2a is equals to 15 plus 3 will give you 18. A is equals to 18 upon 2. 2 ones are 2 nines are. Therefore, A is equals to 9. A is equals to क्या हो जाएगा? 9. मतलब हमें A का वैल्यू मिल गया 9 और B का वैल्यू मिल गया 1. अब कुछ स्टूडेंट्स ना यही इतना सम सॉल्व करके छोड़ देते हैं. But is the sum complete? Is the sum complete? No, it is not. Why it is not complete? Because in question we were given the variables as x and y. That means हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है ना. हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है 1 upon x is equals to a and 1 upon y is equals to b. But question में तो x और y दिया है. So that means we have to solve the equations for x and y. So now what will we do is ये लिखना है 1 upon x का वैल्यू क्या है? a. But a का वैल्यू क्या है? 9. करेक्ट. उसी तरीके से what is the value of 1 upon y? It is b. See, 1 upon y is b. But what is b? It is 1. करेक्ट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है? 9 मतलब 9 upon 1 है. करेक्ट. सो ये 1 into 1 will give you 1 is equals to, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो. ये देखो ये x यहाँ पे चला जाएगा, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा ना. सो इट इज x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9. x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9. एंड देन y तो क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 1. y इज इक्वल्स टू 1. आप लोग को समझा? अगर नहीं समझा तो सी आई शो योर. यहाँ पे देखो 1 upon x is equals to a is equals to 9 है. बराबर. अभी if I cross multiply, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 into 1 1 will give you 9x. Correct? This will be 9x. अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं 9 को यहाँ पे भेज दूंगी ना. तो 1 upon 9 is equals to x. Okay, 1 upon 9 is equals to x. मतलब x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 1 upon 9. सिमिलरली y के लिए क्या है? यहाँ पे क्या है? आई शो यू हियर 1 upon y is equals to b is equals to 1. अब यहाँ पे 1 upon 1 है ना, मतलब y is equals to 1 आएगा. y is equals to 1 which I have written here. Okay, so I hope this sum is pretty clear to you all. थोड़ा different क्यों है? Because the variables will be given to you all in fraction, that is in the denominator. So you will have to just think of what can you substitute the variables. Okay, आप लोग को वेरिएबल का कुछ अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा so that your question is not in denominator or in fraction form. See, here I simplified the equations. Then I solved them simultaneously and then I just substituted the values of a and b in form of x and y. And I got the values for x and y. Now one more thing students. यहाँ पे after reaching this question,
जरूरी नहीं दैट यू हैव टू सॉल्व दिस विद साइमल्टेनियस मेथड. You can even use graphical method. You can even use Cramer's rule, that is determinant method. But I am suggesting you all never ever go for graphical method because graphical method is very lengthy. So don't go for graphical method. If you all are going, then use simultaneous equation or else Cramer's rule. Okay, I mostly prefer simultaneous equation in these questions, but you can even go for Cramer's rule. So now make a note of this question. And if you all have even any doubts, then you all can even comment me in the comment section. I'll revert to you all as soon as possible. Okay, copy this down or take a screenshot and then we move further. Okay students, so I hope आप लोगों को question number 1 बहुत ही अच्छे से clear होगा. Now mark question number 2 for homework. I'm repeating, mark question number 2 for homework. वो similar है question number 1 से. अब वहां पे देखो, जो आपको डिनोमिनेटर है, जो आपको दो डिनोमिनेटर दिए है, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, द फर्स्ट डिनोमिनेटर, एंड द सेकेंड इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. तो आप लोग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए अज्यूम करेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी अज्यूम करेंगे, एंड देन द होल सम इज सिमिलर टू द फर्स्ट सम. ओके, सो दैट इज फॉर होमवर्क whose answer I will be providing you all in the upcoming lecture. Okay, now see, I have written here question number 3. So question number 3 की जो equations है, that is 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equals to 85. ठीक है, और second क्या दिया है, 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89. अब यहाँ पे आप लोगों को कौन से दो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं? एक तो है x minus 2 जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. दूसरा है y plus 3, अगेन here also and here also. तो हम लोग अज्यूम करेंगे, let just a second, 1 upon x minus 2 is equals to a, 1 upon y plus 3 is equals to b. ठीक है, ये स्टेप लिखना है बिकॉज दिस स्टेप विल कैरी हाफ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, नाउ सी, अब ये क्या बन जाएगा, 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85. करेक्ट, 27a plus 31b is equals to 85. Okay, and the second equation here will be, mark this as equation number 1. Second equation क्या बनेगा, 31a plus 27b is equals to 89. I hope आप लोग को दोनों भी equations clear होगा, हमने कैसे दोनों equations फॉर्म किए. अब यहाँ पे आप लोग इसे simultaneously भी solve कर सकते हो. How? See, you can multiply equation 1 by 27 first and then multiply equation 2 by 31. Then the coefficients will get equal here. Then उसको आप लोग subtract करेंगे तो आप लोग को b का आंसर, सबसे पहले a का आंसर मिलेगा. Then आप a का आंसर इस किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको b का आंसर मिल जाएगा. करेक्ट, बट दैट विल बी वेरी लेंथी, सो आई विल टीच यू दिस सम थ्रू क्रेमर्स रूल. ठीक है, सी आप लोग को मेथड सिखाए इसलिए चाहते हैं ताकि whenever you get any question, so you know which type will be easy for you. Okay, so now I'll show you this sum through Cramer's rule. So first of all we find determinant. So d is equals to, make your determinant. यहाँ पे a के coefficients आएंगे, that is 27 and 31, और यहाँ पे b के coefficients, that is 31 and 27. Now यहाँ पे c, 27 into 27 minus 31 into 31. Okay, now the calculations here are a bit lengthy, so just to save time I have done the calculations for you all. This will be 729, 27 square 729 minus 31 square will be 961. ठीक है, ये कैलकुलेट करके देख लो, यही आंसर आता है. Now when you subtract this, so you will get minus 232. 961 minus 729 will give you 232. And यहाँ पे हम 961 is a greater number, so we will carry its sign, that is minus. Therefore, determinant is equals to minus 232. Okay. Then what do we find? We find d of x. Correct. लेकिन यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स x और y नहीं है. The variables here are a and b. तो हम लिखेंगे d of a, which is equals to, यहाँ पे
ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। डी ऑफ ए, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे कॉन्स्टेंट्स 85 एंड 89 एंड हियर वी राइट 31 and 27. Okay, now cross multiply 85 into 27 minus 31 into 89. Okay, now 85 into 27 will be 2295 minus 31 into 89 will be 2759. Now when you subtract this you will get minus 464. इसमें से ये माइनस करना है, so it will be 464 and sign इसका आएगा since this is a greater number, so minus. Therefore d of a is equals to minus 464. Now next हम क्या फाइंड करते हैं, d of y. यहाँ पे y की जगह पे कौन सा वेरिएबल है, b. So we find d of b, that is determinant of b. d of b will be equal to, यहाँ पे क्या आएगा 27, 31, यहाँ पे 85 and 89. Correct? Now this will be 27 into 89 minus 85 into 31. Okay, now this 27 into 89 will be 2403 and this will be 2635. Okay, now when you subtract this you will get your minus 232 again. Therefore d of b, that is determinant of b, will be equal to minus 232. Okay, I hope this much is clear to you all. फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड में हम x और y ढूंढते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, a और b. So a will be determinant of a upon determinant. What is determinant of a? Minus 464. Minus 464 upon determinant of determinant. तो determinant क्या है हमारा, minus 232. सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो. ये देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सबका डबल है, मतलब दिस इज 232 2 जा. समझा ये कैसे आया? अगर नहीं आता है तो डिवाइड करके भी देख सकते हो. Therefore a is equals to 2. Now b कैसे ढूंढेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ b अपॉन d. सो ये माइनस 232 अपॉन minus 232. Minus minus cancel and this is 1. So b is equals to 1. अभी तो हम लोग ने सिर्फ a और b ढूंढा है. What do we have to find? We have to find x and y. So अभी क्या करेंगे, we'll substitute 1 upon x minus 2 was a. हम लोग से a कंसिडर किया था, लेकिन a का आंसर क्या आया, 2. करेक्ट. सिमिलरली 1 upon y plus 3. 1 upon y plus 3 उसको हमने b कंसिडर किया था, लेकिन b का आंसर हमें क्या मिला, 1. अब देखो इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 1 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे जाएगा ना, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू 1 आया, ये लिखने का जरूरत नहीं होता है. एंड ये 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 2 जा 4. अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया. अब मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ. 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 2x कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5. तो x कितना आ गया हमारा, x विल बी 5/2. x क्या आया हमारा, 5/2. इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो 2.5, बट नो नीड, 5/2 ही रखो. ठीक है. सिमिलरली y के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है. 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3. यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही आंसर आने वाला है. ठीक है. सो इवन इफ यू डोंट राइट हियर, सो इट्स ओके. सो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1. y इज 1 माइनस 3, मतलब y क्या आ जाएगा, -2. y क्या आ जाएगा, -2.
सो फाइनली हमें आंसर मिल गया, x का आंसर क्या मिला 5/2 एंड y का आंसर मिला -2। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग को मैं आफ्टर एवरी सम बताती हूँ, फाइनल आंसर लिखना रहता है। देयरफॉर सोल्यूशन इज ब्रैकेट में x, y इज इक्वल्स टू वापस एक ब्रैकेट 5/2, -2 एंड आई रिपीट दिस इन एवरी लेक्चर। Final answer carries half mark, so you cannot afford, if you forget to write a final answer, then half mark is lost. Okay, so copy this down students। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बड़े हैं, बट अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट में आप लोग को ये आंसर्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट कॉपी दिस डाउन एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। ओके okay students, so now let us start with the last sum of this exercise, that is question number 4। इक्वेशंस क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equals to 3/4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इज 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equals to -1/8। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको कॉमन डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 3x plus y 3x minus y, 3x plus y 3x minus y, मतलब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 3x plus y और 3x minus y। तो एज यूजुअल हम लोग डिनोमिनेटर अज्यूम करेंगे। लेट 1/3x plus y is equals to a, 1/3x minus y is equals to b। यहाँ पे 1/3x plus y is equals to a, 1/3x minus y is equals to b, इतना आप लोग ने अज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? ये हमारा पूरा क्या है? a, ये पूरा क्या है? a अज्यूम किया है ना हम लोग ने, a प्लस ये पूरा क्या है? b, b इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, अब है ना, इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, हमको डिनोमिनेटर वैसे भी नहीं चाहिए ना, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैंने क्या किया? पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड में देखो, यहाँ पे क्या है? 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई है, स्प्लिट करके देखो यही मिलेगा ना, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। तो ये हमारा पूरा टर्म क्या है? 1/3x प्लस वाई को हम लोग ने क्या लिखा है? a, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू a। समझा मैं क्या बोल रही हूं? ये क्या हो जाएगा? 1/2 a माइनस, सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1/2 b इज इक्वल्स टू -1/8। अभी यहाँ पे भी हमको डिनोमिनेटर तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे देखो 2 2 8, मतलब हम अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो देखो क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा, माइनस यहाँ पे b इज इक्वल्स टू -1/4। अब यहाँ पे a और b के कोएफिशिएंट से तो डिनोमिनेटर हट गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी है हमारे कांस्टेंट साइड पे, दैट इज इन RHS। तो अगेन व्हाट वील डू, वील अगेन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4। 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस बहुत इजी है टू सॉल्व साइमल्टेनियसली, सो नाउ हियर डोंट नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल, सीधा सीधा ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। इसको इस बार ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4b माइनस 4b, प्लस 4a प्लस 4a विल गिव यू 8a, और ये 3 माइनस 1 विल गिव यू 2। तो a क्या हो जाएगा? 2/8, 2 1 जा 2 4 जा, therefore a is equals to 1/4। a is equals to 1/4। ओके, अब a मिल गया, अभी हमें b ढूंढना है, तो सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट a is equals to 1/4 in किसी भी एक इक्वेशन में ले सकते हो. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग इन 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1/4 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3. करेक्ट. सो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3. तो 4b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1. मतलब 4b इज इक्वल्स टू 2. मतलब b क्या मिलेगा 2/4. Therefore b is equals to 1/2. ओके. b is equals to 1/2. Equals to 1/2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू a. लेकिन a का आंसर क्या है 1/4. सिमिलरली 1/3x माइनस y 3x माइनस y इज इक्वल्स टू b. लेकिन b भी क्या है हमारा हाफ. अभी यहाँ पे 9th में आप लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज सीखा था. दैट इज कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो. तो अगर हम लोग इन्वर्टेंडो यूज करें तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4. मैंने इन्वर्टेंडो यूज किया, इसको ऊपर ले लिया. या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 3x प्लस y इंटू 1 मतलब 3x प्लस y. 4 इंटू 1 मतलब 4. कैसे भी जैसे भी आप लोग को समझ में आता है बोथ मेथड्स आर करेक्ट. ये इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. नाउ सी यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर इन्वर्टेंडो जो भी आप लोग को समझ में आता है. सो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2. इक्वेशन नंबर 4. अभी यहाँ पे भी हमें x और y के आंसर्स अभी तक नहीं मिले. सो वी हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस टू फर्दर गेट आवर आंसर. अभी यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है. आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा. So I'll solve the equation here further. So see यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x plus y is equals to 4. ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है. And what is my equation number 4? 3x minus y is equals to 2. This is my equation number 4. Okay. अब यहाँ पे simply I can add both the equations. So adding आप लोग यहाँ पे लिख लेना adding 3 and 4. I'm repeating right here adding 3 and 4. I'm adding here the equations. ये cancel हो जाएगा. 6x is equals to 6. तो x क्या हो जाएगा 1. करेक्ट. x will be 1. अभी x का वैल्यू मिल गया तो सब्स्टिट्यूट x is equals to 1 in 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4. 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4. सो y क्या हो जाएगा 4 माइनस 3. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1. हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 1. सो योर सम इज क्लियर. x इज इक्वल्स टू 1. फाइनल आंसर लिखेंगे आप लोग. Therefore, solution is x, y is equals to 1, 1. Okay? Copy this down, students. Okay, students. So, I hope कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.4 भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा. इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस 4 ही सम है और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे जो आप लोग इसके बाद ही तुरंत प्रैक्टिस कर लेना. सो दैट आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 एकदम क्लियर हो जाए. एंड मैंने पहले भी बताया था प्रैक्टिस सेट 1.4 से एक सम तो डेफिनेटली आता ही आता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स. सो डू नॉट लीव दिस एक्सरसाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट एज वेल. नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करूंगी विच इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को पहले 4 एक्सरसाइज अच्छे से समझे हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई गारंटी, प्रोवाइडेड आप लोग ने पहले के 4 एक्सरसाइजेस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली हो. ओके. सो नाउ आप लोग ये कॉपी डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माई वीडियोज then please do subscribe to my channel and share and comment on my videos. Okay dear students, that's it for this video. Thank you.